गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? हाउ आर यू एवरीवन? Okay, give me a minute. Let me just. Okay, so कल मैंने आप लोगों से बात की थी. I hope you know me. Yes. Okay. And do you want me to give my formal introduction? आप लोगों को लगता है कि मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहिए? क्या लगता है आपको? So as you can see on the screen, my name is Sonal Jaju, and I will be teaching you the core Python, which will be carried or which will be conducted every day at the same time. अपना ये सेशन रोज इसी टाइम पे होगा, सो यही लिंक यूज करके आप रोज ज्वाइन करोगे. As already Vaishali ma'am has mentioned yesterday, I have an experience of 13 to 14 years, 13 to 14 plus years in the training field itself. मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ विजय अभी. I'm not writing anything. I'm just talking with you. मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ बेटा. तो मुझे अराउंड 13 to 14 years का एक्सपीरियंस है इन द ट्रेनिंग. I have been teaching different subjects like C, C++, Java, Python, data analysis, data science, SQL, web programming. ऐसे अलग अलग वर्टिकल्स अलग अलग सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ. एंड आई हैव taught foreign students as well for a year or for a 2 years or so, जहाँ पे उनको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह सिखाते थे. सो यस, वास्ट वैरायटी का एक्सपीरियंस है मेरा. आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग and bachelor's in engineering as well. So, yes, here I am, and I will be meeting you everyone every day at the same time. So, can we have your introduction quickly? क्या हम आपका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं 2 मिनट में? Can you introduce? I just want to know where are you from? What is your highest qualification? That's enough. Hello everyone, my name is Himanshu Ike. I am from Nagpur. Recently, I have done my master's in management studies in finance from Mumbai University in 2023, and I have my background in bachelor's in computer application completed in 2021. Okay. So in 2021, you have completed your bachelor's, and after that, you have done your MBA in finance, right? Yes. Okay. Yes. Vijay, I think your name is something Vishakha, right? Yes, you can give your introduction in the chat box. No problem. Yes, Adnan. So Himanshu, just a minute. Himanshu, are you working anywhere right now? No, ma'am. So you are staying in Mumbai, right? No, I am from Nagpur. Means Okay, I was doing MBA in Mumbai. in Mumbai. Okay, fine. No worries. I think Adnan is from Karanji, right? Somebody is from Karanji who has done his engineering in Karanji itself. Yesterday I heard something like that. I think Kajal आज नई member आई है क्या? जो कल Yes, लगी miss. थी? Yes, miss. Yes, Kajal. Can we have your introduction? Yes, miss. My name is Kajal Pawar, and I'm from Karad, and recently Okay. graduated in computer science from Dr. Daulat Rahir College of Engineering, Karad. Mm-hmm. That's it. Okay.
And Vijaya, can you give your introduction? Yes, ma'am. I recently completed my MCA from Savitribai Phule Pune University, and right now I'm living in Pune, and Okay, I'm looking for Python course, full stack Python. great, great. So Vijaya is from Pune itself. So have No, you I'm not. visited? Currently, Hello. I'm staying in Pune. Okay. So basically, where are you from? I'm from Nanded. Okay, okay. Hi, So ma'am. Vijay, I'm from. just a minute, Adnan. Adnan, give me a minute. Vijay, you can come down at FC Road office if you want. You can visit us. Yeah, I visited for inquiry, ma'am. Oh, oh, For great, yeah, great. I yeah. Yes, Adnan, go ahead. Uh, I've done my BTech from DKT College, Ichalkaranji. Passed out from 2024 batch, and Okay, I'm from Sangli. okay, okay. Great. Okay, and I think, yes, Vaishnavi has given her introduction in the chat box. She has completed her architecture, artificial इंटेलिजेंस इन रायसोनी रायसोनी यू मीन टू से पुणे का कॉलेज क्या कि जलगांव का है ये रायसोनी अच्छा आई थिंक पुणे के रायसोनी कॉलेज में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है या नहीं आई डोंट नो ग्रेट वैष्णवी व्हाट आई सजेस्ट इफ यू कैन create your own gmail account and if you can join with your own gmail account that will be great बिकॉज फिर वरना स्क्रीन पे आपके पापा का ही नाम आता रहेगा I don't know whether it is your husband name or your father's name, but if you can create your own Gmail account, if you can join with that, then that will be great. ठीक है जस्ट मेरा सजेशन है क्योंकि फिर मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद रहेगा फिर वो मुझे विजय नाम कैसे है ना देखो अभी अपने दोनों के बीच में दुआ मतलब अपने अपन आप और मैं एक दूसरे को देख तो नहीं सकते आई कैन नॉट सी योर फेसेस जो चैट बॉक्स में लिखेंगे वो मुझे याद रहेंगे तो चैट बॉक्स में तुम जब भी लिखोगी तो वही नाम दिखेगा फिर वो मुझे विजय ही याद रहेगा फिर एवरीडे आपको शायद आपका नाम मुझे याद दिलवाना पड़ेगा so if you can change your name that will be great and yes chat box is going to be our connecting line हम लोग चैट बॉक्स से बात करेंगे क्यों क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एट ए टाइम बात करने लगते हैं तो केओस हो जाता है इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि यूज चैट बॉक्स वी विल मेक श्योर कि चैट बॉक्स में जब भी कोई क्वेरी आएगी वो हम लोग हमेशा आंसर करेंगे आपकी कभी कोई क्वेरी बिना आंसर किए छोड़ेंगे नहीं ओके एंड यस सो let us go through the course flow in a quick minute what we are going to learn how we are going to learn चलेगा आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन ही करते हैं क्योंकि एनी हाउ आज फ्राइडे है एंड सैटरडे संडे वी यूजुअली गिव ऑफ टू बैचेस क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पूरे एक वीक में बहुत कुछ सिखाया जाता है और फिर वो रिवाइज करने के लिए टाइम चाहिए होता है आपको असाइनमेंट्स जो मिलेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम चाहिए होता है इसलिए हम लोग सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं सो आज का सेशन होने के बाद अपना सेशन मंडे को होगा सो आज हम लोग थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं let us understand what we are going to learn how this course is going to flow and everything and then we will be talking about the technical things one by one chalega will that be okay everyone yes and give me a minute I'm sharing with my screen मैंने आज सच कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है बिकॉज पाइथन जो सब्जेक्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट इट्स नॉट अ थेरोटिकल सब्जेक्ट सो आई पर्सनली बिलीव कि पाइथन जैसा सब्जेक्ट हम लोग पीपीटी से नहीं सीख सकते हैं सो जो भी है मैं आपको इधर पेंट ब्रश में करके दिखाऊंगी और फिर जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पढ़ेंगे सीखेंगे नोट्स बनाएंगे वो सब कुछ आपके ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा
ठीक है, चलेगा? आर यू देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप्स एवरीवन? आप टेलीग्राम ग्रुप्स में हो? नहीं? ओके, सॉरी, आई फॉरगॉट. विशाखा, राइट? हाँ, वैष्णवी. वैष्णवी, आपको लिंक कहाँ से मिली बेटा ज्वाइन होने के लिए? हाँ, तो उसी ग्रुप में आपको नोट्स दिए जाएंगे थोड़े दिन तक. व्हाट्सएप ग्रुप, ओके. तो जहां से आपने ज्वाइन किया है, आई थिंक इट मस्ट बी अ फ्री ग्रुप. फ्री ग्रुप है क्या वहां पे? वहां पे लिंक डाली गई थी. ओके. व्हाट यू कैन डू इज, आई होप आपको जो नंबर से लिंक मिली है वो नंबर पे आप पूछो एक बार कि टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है जहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ. कैसे? जब तक ये फ्री बैच चलेगी ना, तब तक हम लोग आपको वहां पे ही नोट्स वगैरह शेयर करते रहेंगे. ठीक है? और अभी तो अपना टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है. थोड़े दिन बाद आपका लैब स्टार्ट होगा. फिर आपका और एक नॉन टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट होगा, एप्टीट्यूड या फिर सॉफ्ट स्किल का. तो ये जो सेशंस रहेंगे उनकी जो ज्वाइनिंग लिंक्स रहेगी ना, वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आएगी. हाँ, देखो हिमांशु ने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी भेज दिया है. तो वैष्णवी, इससे तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है? अच्छा, तुमने फीस भरी है? हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है. हाँ वैष्णवी, फिर तुम सही वाले ग्रुप में हो. सॉरी, मेरी तरफ से कंफ्यूजन था. तुम फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, जो जिस ग्रुप में हो वही सही ग्रुप में हो, और तुमको सारे लिंक्स डायरेक्टली मिल जाएंगे. I was talking about the free groups. Okay. And I think two more people joined. सर्वेश, और अभी कोई तो जय नाम से कोई ज्वाइन हुआ था, कहाँ चला गया? सर्वेश, आप कल नहीं थे, राइट? एंड Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरे कोर्स के बारे में कल एक इंट्रोडक्शन दिया गया था. आपने वो रिकॉर्डिंग देखा? No, ma'am. Okay. So do one thing. Are you there in the Telegram group, free group? No, ma'am. I will join, ma'am. I'm not there. ओके, यू जॉइन देयर, एंड आपको वहां पे कल के और आज के दोनों सेशंस के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे. वो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? कैन वी हैव योर Okay. इंट्रोडक्शन सर्वेश? वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट आर यू डूइंग नाउ, राइट नाउ? Hello, everybody. Hello, everybody. I'm Sarvesh. I'm studying right now in GS Moje College, Balewadi. I'm in fourth year of CS. ओके ओके, ग्रेट. मतलब तुम क्या बोलते हो, पास आउट होने के पहले ही अपना नॉलेज गेन कर लेना चाहते हो, सो दैट फटाक से जॉब लग जाएगा, काइंड ऑफ? Yes, ma'am. गुड, वेरी ग्रेट, ग्रेट. So let us have a introduction towards what we are going to learn. So हम लोग core Python पढ़ने वाले हैं. मैं वो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी नोट डाउन करने वाली हूँ. Is the font size okay? Is it visible to everyone? Can I get a confirmation in the chat box? Yes, you can write. Just Y लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, कुछ रूल्स बता देती हूँ. हाँ, मतलब रूल्स मतलब नॉट एग्जैक्टली रूल्स. रूल्स मतलब इसको फॉलो करना ही ऐसे नहीं है. अगर आपको यस बोलना है तो सिर्फ वाई टाइप करोगे तो चलेगा. नो बोलना है तो एन टाइप करोगे तो चलेगा. कुछ सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज करोगे तो चलेगा. आपको इमोजीज दिखते हैं, वो इमोजीज आप हैंड रेज करोगे ऐसे तो चलेगा. फिर अगर सपोज बाय चांस होता नहीं है, मेरे तरफ से इंटरनेट चला गया ऐसे
कभी नहीं होता है, बट अगर चला गया, मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट टाइप वॉइस ब्रेक, वीबी, और उसका अपोजिट लाउड एंड क्लियर, एलएनसी बोलते हैं हम लोग। एलएनसी इज लाउड एंड क्लियर। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज करेंगे। आई नो व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम के जमाने के बच्चे हो आप लोग, आपको मेरे से ज्यादा शॉर्टकट्स पता होंगे, बट ये कुछ शॉर्टकट्स है जो हम लोग यूज करेंगे, चलेगा? और आप इमोजीज भी देते रह सकते हो बीच बीच में, अगर आपको कभी इमोजीज देने का मन करेगा तो आप इमोजीज भी दे सकते हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट कि हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं। सो कोर पाइथन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो इस टाइम पे एवरी डे we will be learning something new in core python, where we are going to start with algorithm building. सी आई नो कि आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हो। कुछ लोग हैं जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाएंगे दैट विल बी taught to you from scratch। एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अल्गोरिदम बिल्डिंग जो होता है, जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सीखेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। फिर हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स सीखेंगे। Then we will be talking about the looping structures। आपने ये लूप स्ट्रक्चर्स सुना होगा। हम लोग कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग्स करेंगे। पैटर्न प्रोग्राम सुना है? कोडिंग राउंड्स में आते हैं वो, ट्रायंगुलर वगैरह शेप के, वो हम लोग करेंगे। देन one of the important topic functions we will be discussing। then we will be discussing about the data structures in python। पाइथन ने खुद कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। वी आर गोइंग टू लर्न दैट, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग with oops concepts। then after that we will be talking about file handling in python। पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है। then we will be talking about how you are going to connect with database connectivity, हम लोग सीखेंगे। we are going to talk about टिकिंटर is one of the, किंटर बोलते हैं कुछ लोग इसको, कुछ लोग टिकिंटर बोलते हैं। GUI बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये यूज होता है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस एज वेल एंड मल्टी थ्रेडिंग। ये कुछ टॉपिक है जो हम लोग कोर पाइथन के अंदर सीखने वाले हैं। Okay, these are the topics which we are going to learn under core python। तो टिपिकली ये टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए अपने को अराउंड 100 आवर्स लगेंगे। ओके, मैं महीने में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आवर्स में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर्स। वी विल नीड अराउंड 100 आवर्स टू कंप्लीट दिस। तो देखो ना, मतलब अगर स्क्रीन पे देखो, 3 8 आणि 11 आणि 3 14, अराउंड 14 to 15 टॉपिक्स है। बट इसके अंदर भी छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स है। सो ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए अपने को अराउंड 100 आवर्स लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना जल्दी कैप्चर करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने सुना है और शायद मैंने नहीं लिखा है? ये क्या होता है मैम, ये हमने सुना है, ये कवर होगा क्या, वो कवर होगा क्या? कैसे देखो, तुम लोग भी 10 जगह इंक्वायरी करके आते हो ना, किसी ने कुछ बोला होगा तो ये इधर नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है।
नहीं? पक्का? एवरीवन प्लीज प्लीज बी टॉकेटिव। हाँ, उसके ऊपर आ रहे हैं अपन। फ्रेमवर्क के बारे में बात करूंगी विजय, 2 मिनट। हम लोग अभी सिर्फ कोर पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कोर पाइथन, जो ये 9 बजे के सेशन में होगा वो बता रही हूं मैं, ठीक है? फिर इसके साथ साथ आपके दूसरे मॉड्यूल्स भी चलने वाले हैं, जैसे कि आपका एसक्यूएल, माइस्क्ल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मॉड्यूल चलेगा। इसके अंदर आप क्वेरीज कैसे बनानी है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फिर डीडीएल क्वेरीज, डीएमएल क्वेरीज, इंडेक्स क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, ये सब कुछ सीखोगे। दूसरा मॉड्यूल आपका होगा वेब प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ सीखोगे। देन आपका डेटा एनालिसिस का मॉड्यूल रहेगा, where you are going to learn about numpy, pandas, ये सब कुछ सीखोगे। तो ये सबके लिए कॉमन रहेगा, जितना मैंने अभी लिखा है, ठीक है? मतलब अब ये कॉमन कहाँ से आ गया, ये क्या बात कर रहे हैं मैम, 2 मिनट में बताती हूँ। डिंग, डिंग, डिंग। ये जो चीजें हैं जो मैंने अभी इस बॉक्स में डाला है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। फिर जैसे वैशाली मैम ने कल भी बताया, अभी यहाँ से बायफरगेट हो जाते हैं। फुल स्टैक वाले बच्चे जो होते हैं वो लोग सीखेंगे फ्लास्क फ्रेमवर्क और जैंगो फ्रेमवर्क। बराबर? वैष्णव शायद विजय इसी के बारे में बात कर रही है, करेक्ट? और डेटा साइंस के स्टूडेंट्स बायफरगेट हो जाते हैं, वो लोग पढ़ेंगे डेटा साइंस। ओके? और इसके साथ साथ तुमको हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वैशाली हमने कल भी बताया, आई विल लाइक टू रिपीट इट अगेन। You will be getting the recordings for C and C++ subjects. You are going to get recordings for operating systems. You are going to get recordings for software engineering. You are going to get recordings for GitHub कैसे यूज करना है, उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, इसके भी आपको रिकॉर्डिंग्स दिए जाएंगे। सो ये तो रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, प्लस आपके लाइव लैब सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो अभी ये लैब सेशंस क्या होते हैं? लैब सेशंस में आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे करने के लिए। अभी कोर पाइथन कंप्लीट होने के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, तो वो करने के लिए आपको सपोर्ट लगेगा, वो लैब सेशन में मिलेगा। आपको फ्रेमवर्क्स के प्रोजेक्ट रहेंगे, वो करने के लिए आपको लैब सपोर्ट मिलेगा। लैब में आपके लिए टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, MCQ कंडक्ट किया जाएगा, आपके प्रैक्टिस इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये सब कुछ आपका ये 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है, ये जो कोर्स है, इसमें ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस एनीवन अबाउट दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, हाउ द कोर्स विल बी? अभी तुम्हारा सिर्फ एक सेशन चल रहा है। अभी इसके बाद तुम्हारा एक नॉन टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, एप्टीट्यूड या फिर सॉफ्ट स्किल, इसमें से कोई एक मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका जो क्लास का टाइमिंग रहेगा ना, वो बढ़ते जाएगा। तो ये क्लास कब रहेगा, अभी ये मॉड्यूल्स कब रहेंगे? सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे के पहले तक, कभी भी हम लोग ट्रेनर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से तुम्हारे ये जो बाकी के मॉड्यूल्स है वो अरेंज करेंगे। तो आपको पहली चीज क्या करनी है, आपको टाइम फ्लेक्सिबल रहना है। यू नीड टू बी टाइम फ्लेक्सिबल। अगर किसी रीजन से, फॉर एग्जाम्पल सर्वेश लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और अभी सर्वेश के एग्जाम आ गए, तो सर्वेश सेशन नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो फिर क्या करेगा सर्वेश? फिर उतना वो 4 दिन अगर उसने सेशन नाही अटेंड किया, तर उसका सगळं बुडेल त्याचं, त्याला कसं कळणार मग नंतर?
हाउ वी विल अंडरस्टैंड? तो इसी के लिए उसको रिकॉर्डिंग्स भी दिए जाते हैं। हर एक सेशन के बाद उसके रिकॉर्डिंग्स जनरेट होते हैं एंड दोज रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर्ड विथ यू ऑल। समझ में आ रहा है? लाइव सेशन के रिकॉर्डिंग्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है? अरे रिप्लाई चैट बॉक्स यूज करो, चैट बॉक्स को ऐसे खाली खाली मत रखो। यस विजया, गो अहेड। Yes, ma'am. Means after core Python, we have to choose in between framework or data science. You are not going to choose it after core Python. Basically, right now the course you have joined, you are joined for free. जब आपका जब पेमेंट भरने का टाइम आएगा तब आपको डिसाइड करना होगा, और आपको डिसाइड करना होगा कि आपको फुल स्टैक के लिए एडमिशन लेना है या फिर आपको डेटा साइंस के लिए लेना है। अभी और आपने मैम डेटा साइंस का क्या है? मीन्स डेटा साइंस में और उसका भी कुछ और सिलेबस है? हाँ, डेटा साइंस का सिलेबस अलग रहता है, जहाँ पे मशीन लर्निंग सिखाया जाता है। हम लोग पावर बीआई के लिए इंट्रोडक्शन देते हैं। यू विल बी लर्नड अबाउट यू विल बी टॉट फॉर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ सिखाया जाता है। सी आपको कोर्स का कितना फीस देना रहेगा और आप कब तक एडमिशन ले सकते हो, इसका बारे में आपको अलग से बताया जाएगा। And then you can choose whether you want to go for a full stack Python development course, or you want to go for a data science course, or you want to go for both the courses. Okay? Okay, ma'am. हाँ, you can go for both the courses as well, क्योंकि anyhow ये core Python, SQL, web data analysis, ये सब कुछ C++, ये सब कुछ कॉमन है। डिफरेंट क्या रहेगा? अगर तुम लोग फुल स्टैक को एडमिशन लेते हो तो तुम्हारा ये वाला मॉड्यूल रहेगा, फ्लास्क जैंगो। और अगर तुम डेटा साइंस के लिए एडमिशन लेते हो तो तुम्हारा ये वाला मॉड्यूल अलग से होगा। बाकी सब कॉमन है सबके लिए। तो उसकी फीस क्या होगी, दोनों के लिए एडमिशन ले सकते हो क्या, ये सब हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल just concentrate on the free things whatever you are getting and let us concentrate on core Python. चलेगा? Will that be okay, Vijaya? Yes. मैंने डेटा साइंस कोर्स में एडमिशन लिया है तो उसमें क्या क्या सिखाई जाएंगी। ओके, वैष्णवी, कोर पाइथन विल बी देयर, MySQL, वेब प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस ये भी रहेगा, C++ के रिकॉर्डिंग मिलेंगे, OS के रिकॉर्डिंग मिलेंगे, SE के रिकॉर्डिंग मिलेंगे, गिटहब के रिकॉर्डिंग मिलेंगे, एप्टीट्यूड होगा, सॉफ्ट स्किल होगा, ये लाइव होगा। देखो, ब्लैक बॉक्स में जो भी मैं मार्क कर रही हूँ ना, वो सब कुछ आपके लिए रहेगा। अरे ये ब्लैक कहाँ से, रेड कहाँ से हो गया? ठीक है, ये सब कुछ कॉमन है। दिस एवरीथिंग इज कॉमन। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज डेटा साइंस स्टूडेंट को डेटा साइंस अलग से सिखाया जाएगा और फ्लास्क जैंगो फ्रेमवर्क विल बी फॉर फुल स्टैक स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। क्लियर है वैष्णवी? Yes. Any other question, anyone? If not, you can just type C for clear. कि हाँ, ये इतना तो समझ में आ गया कि क्या क्या होगा और क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ में आ गया तो ग्रेट। सो नाउ मेरे को एक सवाल है कि आप सब लोग ग्रेजुएट्स हो, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेनी पीपल आर इंजीनियर्स, फिर भी आप ये अलग से कोर्स क्यों कर रहे हो?
you have a degree of engineering. You have already, some of you have already completed their engineering. किसी ने MBA किया है, किसी ने MCA किया है, फिर भी आप ये अलग से कोर्स क्यों कर रहे हो? ये क्यों का आंसर ढूंढा है क्या आप लोगों ने? क्या लगता है आपको? क्यों आप ये अलग से कोर्स ज्वाइन कर रहे हो आज? या फिर आप आज रात को 9 बजे यहाँ पे क्यों आए हो? Okay, Vijaya says for skills, fine. Yes, what about others? Himanshu has already done his MBA. Adnan has already done his engineering. To learn data science, which has not taught in college. Okay, fine. Okay. Okay, I can understand that. But सिर्फ सीखना है हिमांशु? You just want to learn it? सीख के क्या करोगे? जॉब चाहिए. Placement preparations and skills. Yes, Vaishnavi, that is correct. So कहीं ना कहीं see, मैं भी कॉलेज फेज से जा चुकी हूँ, मैं भी इस फेज से जा चुकी हूँ, इसलिए आई नो कि कहीं ना कहीं घर में ये बोला गया है कि देखो डेटा साइंस में जाओगे तो वो शर्मा जी का बच्चा इतना कमा रहा है आज, शर्मा जी का बेटा आईटी में सेटल हो गया है, अपने को भी सेटल होना है शर्मा जी के बेटे की जैसे. कहीं ना कहीं किसी ना किसी का एग्जाम्पल तुमको भी दिया गया होगा ना घर में. शर्मा जी का नहीं तो पाटील का दिया होगा. बघा तो पाटलांचा मुलगा, ती पाटलांची मुलगी पुण्यात सेटल झाली. ऐसे कहीं ना कहीं तो ये डायलॉग सुना होगा ना. एंड इफ यू कैन रिमेम्बर दैट, यू कैन जस्ट गिव मी अ स्माइली. इमोजी यूज कर सकते, इतना सीरियस होके नहीं बैठना है मेरे लेक्चर में. ठीक है, हंसते खेलते सीखना है अपने को, इतना सीरियस मोड में नहीं रहना है. इमोजी, यू नो इमोजी रहते हैं. देखो, अगर आप लोगों ने मोबाइल से ज्वाइन किया है ना, तो 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना तो इमोजीज आते हैं. देखो वहां पे, पता है तुम लोगों को? देखो वाला सब लोग इमोजी दो, सबको मिले क्या? ये वाला इमोजी किसी को मिला क्या? बाकी लोग? अरे, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा क्या? या फिर बाकी लोग सिर्फ कान में हेडफोन लगा के चल दिए? इधर बात नहीं करोगे तो नहीं चलेगा बेटा, प्लीज. फिर मुझे ऐसे लगेगा कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ. अगर तुम लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे लगेगा कि अरे मैं तो दीवारों से बातें कर रही हूँ, है ना? क्योंकि मेरे सामने तो हो नहीं ना आप लोग, मेरे सामने तो दीवारें है. मैं एक ऐसे छोटे से रूम में बैठी हूँ जहाँ पे मैं और मेरा लैपटॉप और कुछ नहीं है. तो तुम लोग सामने हो, ऐसे मुझे इमेजिन करना है तो आप लोगों को भी तो इमेजिन करना पड़ेगा मैं सामने हूँ करके, बराबर? तो देखो, आई नो कि ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि आईटी में बहुत पैसा है. भाई आईटी में पैसा है. आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं. बट आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एसी में बैठ के तुमको बहुत काम भी करना पड़ेगा. आई नो मजदूरी नहीं करेंगे, बट अपने को काम भी उतना ही करना पड़ेगा. डिफरेंस इज कि मजदूर लोग रास्ते पे काम करते हैं, बाहर धूप में काम करते हैं, हम लोग एसी में बैठ के करेंगे. बट बेटा हार्डवर्क तो सबको करना पड़ता है. बिना हार्डवर्क के पैसे नहीं मिलते हैं. जो शर्मा जी का बेटे का एग्जाम्पल आपको घर में दिया जाता है, उसने भी मेहनत किया है तभी उसको आज अच्छा सा पैकेज मिल रहा है. सो ये मेहनत जॉब लगने के बाद करेंगे ऐसे नहीं.
ये जॉब लगने के लिए भी अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अभी से आप पहले दिन ही क्यों ऐसे डरा रहे हो मैम कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं। तो बेटा मैं ऐसे कोई तुमको डरा नहीं रही हूँ, तुमको कोई ऐसे मैं धमका नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि ये रियल सिचुएशन है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। मेहनत मतलब क्या करनी है? कोई मतलब खड़ी मशीन में जाके तुमको पत्थर नहीं फोड़ने हैं। आपको क्या करना है? आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, टाइम टू टाइम आपको टेस्ट देने हैं, एमसीक्यू टेस्ट आपके लिए जाएंगे, वो टेस्ट आपको देने हैं, आपको मॉक इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना है। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस। ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम करनी रहेगी। ठीक है, चलेगा? तो आप लोग आज से ही थोड़ा सा मन बना लो। सी, ये प्रवचन की बातें हैं, आई नो। ये जो मैम आप बता रहे हो ना, ये सब हमको पता है कि ये करना पड़ता है, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। आई नो कि ये सब चीजें पहले दिन अच्छी लगती है। बताऊंगी वैष्णवी, 2 मिनट। फिर धीरे धीरे लोग इसको भूल जाते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? अपने को अपना एक गोल सेट करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और वो आपको आपके स्टडी टेबल पे, आप जहाँ पे पढ़ाई करने बैठते हो वहां पे लिख के रखना है। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हो। जैसे किसी ने अभी बोला था कि थेरोटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने के लिए असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको डे टू डे जो भी सेशंस है उसमें लाइव आना पड़ेगा, राइट काजल? सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है, ये याद रखना है कि मुझे एक भी लेक्चर बंक नहीं करना है। क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में यह प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बोलते जाने दो ना, रिकॉर्डिंग है बाद में देख लेंगे। बट जितना लाइव आओगे ना, उतना तुम्हारा फायदा रहेगा। रिकॉर्डिंग आपको क्यों दे रहे हैं हम लोग? रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स दिए जा रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग्स आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। वो रिकॉर्डिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। बट वो रिकॉर्डिंग्स आपको रिवीजन पर्पस के लिए यूज करने हैं, ना कि एक्चुअल सेशंस के लिए। एक्चुअल सेशंस में आपको रेगुलरली आना है। ठीक है? सो कमिंग बैक टू वैष्णवीज क्वेश्चन, असाइनमेंट किस टाइप के होंगे? मतलब ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं ना वैष्णवी, ये जैसे जैसे हम लोग एक 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 टॉपिक पढ़ेंगे, उस हर टॉपिक के लिए आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है? ओके, तो अभी ये हार्डवर्क की बातें मैं कर रही थी ना, तो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको, चलेगा? एज आई सेड, आज हम लोग सिर्फ गप्पे मारने वाले हैं। मंडे से हम लोग एक्चुअल टेक्निकल थिंग्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है। थोड़ा रिलैक्स करो, चिल डाउन करो। मंडे से हम लोग एकदम कमर कस के स्टार्ट करेंगे, चलेगा? आई वुड लाइक टू गिव यू, और आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने जब सुनी थी। विल यू बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस स्टोरी? गुड। तो एक यंग बंदा होता है, मतलब यंग ब्लड बोलते हैं ना अपन, तो ऐसे एकदम इंथुजियास्टिक बंदा होता है एक, और उसको ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ही वांट्स टू बी अ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा खुद का बिजनेस, मेरा खुद का धंधा टाइप्स। तो वो क्या करता है कि उसको भी उसके पास बिजनेस आइडियाज बहुत सारी होती है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो चलता ही नहीं है।
हमेशा वो कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आता है और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है और वो लॉस में चला जाता है। तो ऐसे उसके साथ 5-6 बार हो जाता है। और अभी वो बिजनेस सेटअप करने के लिए वो बैंक से लोन लेता रहता है। तो उसका इतना लोन हो जाता है कि अभी वो उसको वापस लोन दे भी नहीं पाएगा, ऐसे उसकी सिचुएशन हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाता है पूरा। तो फिर उसको लगता है कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, वो हताश, निराश टाइप्स हो जाता है और वो सोचता है कि यार मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, मेरे जो भी बिज़नेस आइडियाज़ है, जब भी मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को फेल्योर ही मिल रहा है, मेरे को सक्सेस ही बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसे सोचते-सोचते वो एक गार्डन में आके बैठता है। तो वहाँ पे वो बेंच पे बैठा हुआ रहता है, बहुत देर तक सोचता है कि अभी क्या करूँ मैं आगे? पैसे तो खत्म हो गए, मेरे पास बिज़नेस आइडियाज़ है बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब मुझे कोई बैंक लोन भी नहीं देगा, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली वाले भी गुस्सा कर रहे हैं कि तू क्या कर रहा है करके, ऐसे सब वो सोचते हुए बैठता है। तुम लोग हो ना कि सो गए? मेरे साथ हो ना सब लोग? यू आर देयर? तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आके बैठता है, ठीक है? तो वो आदमी बोलता है कि बेटा क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे एकदम निराश क्यों लग रहे हो? तो बोलता है कुछ नहीं अंकल ऐसे ही। तो बूढ़ा वापस उसको पूछता है, ऐसे सर पे से उसके हाथ वगैरह घुमाता है, वापस उसको पूछता है बता बेटा क्या हुआ? तो ये बता देता है उसको कि ऐसे-ऐसे सब मेरे साथ हो रहा है, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है। तो बूढ़ा आदमी क्या करता है उसके जेब से एक चेकबुक निकालता है और उसको लाख रुपए का चेक बना के दे देता है और वो बोलता है एक काम कर, तू ये चेक ले, पैसे विथड्रॉ कर और तुझे जो भी नया बिजनेस ओपन करना है तू कर ले। तो वो बोलता है नहीं नहीं आपको तो मैं पहचानता भी नहीं, आपसे कैसे पैसे लूं मैं, है ना? बचपन में सिखाया गया है ना अपने को अनजान आदमी से चॉकलेट नहीं लेने का कभी। वैसे वो सोचता है कि अनजान आदमी से मैं इतने पैसे कैसे ले लूं। तो फिर वो नहीं नहीं बोलता है बट वो बूढ़ा आदमी क्या सोच सुनता ही नहीं है, वो उसको बोलता है कि ले तू और एक काम कर कि मैंने आज तक जिसको भी पैसे दिए उसका सबका अच्छा हुआ है, तो 1 साल बाद इसी जगह पे आके मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और वो फिर पैसे देके चला जाता है। मतलब वो चेक देके चला जाता है। फिर ये रात भर सोचता है कि एक अनजान आदमी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, उसको लग रहा है कि उसके पैसे से मैं अगर बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो 1 साल बाद मैं उसको वापस रीपे कर सकता हूँ। See, that unknown person is showing an confidence into that young man कि तू कर और उसने नाम भी नहीं पूछा कुछ नहीं और उसको 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। तो फिर वो रात भर सोचता है और फिर सुबह उठ के वो क्या करता है, वो चेक अंदर वैसे की वैसे रख देता है और वो सोचता है कि ये चेक उसने दिया है, बट अभी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, एक काम करता हूँ, मैं मेरे पैसों से बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और अगर प्रॉब्लम आया तो अपन इसके पैसे यूज़ करेंगे। ऐसे सोच के वो चेक वैसे की वैसे रख देता है और वापस से नया बिज़नेस स्टार्ट करता है। समझ में आया उसने क्या किया? उसने वो पैसों को हाथ नहीं लगाया, उसने वो पैसे ऐसे ही रख दिए और उसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया कि उसने खुद के पैसे से स्टार्ट किया। एंड एक्चुअली दिस टाइम उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है एंड ही अर्न्स लॉट मच मनी एंड देन वो सोचता है कि अच्छा हो गया मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और 1 साल में वो बहुत सारे पैसे अच्छे से कमा लेता है और फिर वो वापस 1 साल बाद जैसे उस आदमी ने बोला था उसी गार्डन में जाके वो बूढ़े आदमी की राह देखता है। फिर बहुत देर तक राह देखता है, वो बूढ़ा आदमी आता ही नहीं है। बट ये तो बहुत खुश होता है, इसको लगता है कि नहीं, वो अंकल ने अपने को पैसे दिए इसलिए अपना बिज़नेस हो गया। तो वो शाम तक वहाँ पे उनकी राह देखता है और फिर शाम में वो बूढ़ा आदमी उसको दिखता है। वो ऐसे बूढ़ा आदमी भागते हुए आ रहा होता है
तो ये बहुत खुश हो जाता है, ये बोलता है कि चलो अपने अंकल को पैसे दे देंगे वापस। और देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी के पीछे और 2 लोग भागते आते हैं। तो वो 2 लोग जो पीछे से भागते आते हैं, वो उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं। और फिर ये यंग मैन उनको जाके पूछता है कि क्या हुआ, आपने इनको क्यों ऐसे पकड़ रखा है? तो वो 2 आदमी बोलते हैं, अरे ये बूढ़ा पागल खाने से छूट के आया है, और ये क्या करता है, जो भी मिलता है उनको चेक लिख के देता है और बोलता है कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो पागल है। You got the story. What can be the moral of the story? What can be the moral of the story? क्या लगता है आपको, क्या है इस स्टोरी का मॉरल? या फिर what you can think कि मतलब क्या क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? Confidence is the key to success. Yes, very good, Vijay. I totally agree with you. उस बूढ़े आदमी ने जो कॉन्फिडेंस उस यंग मैन में दिखाया, वो कॉन्फिडेंस की वजह से उसने अपना खुद का बिजनेस वापस स्टार्ट किया एंड ही गॉट सक्सीडेड, राइट? उसने कैन आई से रीस्टार्ट किया वापस, राइट? 12th फेल मूवी तो देखी होगी अपन ने। उसने रीस्टार्ट किया, उसने हार्ड वर्क किया। अगर वो बंदा वो ₹1,00,000 का चेक दूसरे दिन जाके तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर देता, तो उसको पता चल जाता कि वो आदमी ने अपने को झूठा चेक दिया है, करेक्ट? एंड वो तो डबल क्या बोलते हैं, डिमोरलाइज हो जाता कि देखो मतलब एक बूढ़े आदमी ने अपने को आके पागल बना दिया। बट उसने उस चेक से क्या सीखा कि नहीं, कोई एक अनजान आदमी मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो आई कैन डू माई बेस्ट, राइट? He took that positive thinking, or he took that positive way, and he go ahead, he went ahead. So अपने लिए अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कोई नहीं आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप लोग अभी इस फेज में हो, आपके लाइफ के ऐसे फेज में हो कि यहाँ पे ना, म्हणजे ते म्हणतं ना की जवान खून है तुम्हारा, तो तुमको कोई भी कुछ बोलता है ना, तुम लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है कि ऐसे कैसे मुझे बोल दिया। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है। आपको खुद से अपने आप को बोलना है कि कोई नहीं, चलो अपन रीस्टार्ट करेंगे। एंड कैन आई से कि वो रीस्टार्ट के लिए ही आप आज ये क्लास ज्वाइन किए हो, राइट? यू वांट दैट रीस्टार्ट, यू वांट दैट किक। वो किक के लिए ही आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, आपने सोचा है कि हम लोग ये करेंगे। तो हमेशा ये कॉन्फिडेंस खुद में रखो, हार्ड वर्क करो, एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। वो ड्रीम जॉब जो है आपका, वो आपको हमेशा मिलेगा, करेक्ट? यस, न्यू बिगिनिंग, आई वुड से वैष्णवी, न्यू बिगिनिंग से भी मैं एक हमेशा वर्ड यूज करती हूँ। आई नो वो शायद तुम लोगों को लग जाता है, मतलब मैं जब भी ये वर्ड यूज करती हूँ बहुत से स्टूडेंट्स के फेसेस ऐसे छोटे हो जाते हैं ऑफलाइन में। तो दिस इज अ सेकेंड चांस इन योर लाइफ, दिस इज अ सेकेंड चांस दैट यू हैव गॉट, करेक्ट? माइट बी कुछ लोगों के लिए ये लास्ट चांस होता है,
घर वालों ने बोला होता है भाई अभी तेरा कुछ नहीं होगा, ये 6 महीने है तेरे हाथ में, तेरे से कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो तू घर के धंधे में आ जा, घर के बिजनेस में आ जा, या फिर तेरी शादी करा देंगे। लड़कियों के लिए तो टिपिकली शादी करा देंगे काइंड ऑफ। तो बेटा दिस इज अ सेकेंड चांस, दिस इज अ लास्ट चांस, एंड इसको आपको अच्छे से यूज करना है। मैं ये प्रवचन की बातें रोज नहीं करूंगी, आई एम डूइंग इट ऑन वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि एक बार मैं टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं वापस बीच में प्रवचन चालू नहीं करूंगी। बट आपको खुद को अपना कॉन्फिडेंस हमेशा ऑन रखना है। जब भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है, ऐसे लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, बिंदास पूछना है। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट कि पीपल क्या सोचेंगे। वैसे भी ऑनलाइन कनेक्ट हुए हो, कौन किसी को कोई नहीं पहचानता इधर, कोई किसी को जानता नहीं है, कोई आपको फेस से भी नहीं पहचानते हैं। सो यू कैन आस्क वॉट एवर योर डाउट्स बिंदास। हाँ, कोई किसी को नहीं पहचानता है, पता नहीं कौन काजल है, कौन हिमांशु है, कौन वैष्णवी है, राइट। ऑफलाइन में तो ठीक है, मतलब साइड में बैठा है तो लगता है अरे वो क्या सोचेंगे अपने बारे में। ऑनलाइन में तो कौन किसको पहचानता है यार, दुनिया के कौन से कोने में बैठ के क्लास कर रहे हो किसको पता। सो with this high spirit we need to start our module from Monday. Everyone, अच्छी लगी स्टोरी? ट्विस्ट आ गया ना एंड में, क्लाइमेक्स कुछ अलग ही हो गया। तो अपने स्टोरी का क्लाइमेक्स अपने को लिखना है, याद रखो। ट्वेल्थ फेल मूवी अपने लिए ही बनी है, राइट। सो आई होप today's session was much interesting session, and in the same way we will be starting with technical things, and I will make sure कि आपको वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। सी जहां कहीं पे भी आपको लगता है ना कि मैम ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट वर्ड को इंटरेस्टिंग वर्ड से रिप्लेस कर दो, एंड आई एम 100% श्योर आपको इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। नाही मी ऐकलंय ते प्रोग्रामिंग लय अवघड असतंय। मराठी एवरीबडी इज कंफर्टेबल, राइट। मैं बीच बीच में मराठी लाइंस डालते रहती हूँ, क्योंकि काही काही अवघड नाही है। ओके अदनान, यू डोंट अंडरस्टैंड मराठी? No, ma'am, no. I can understand. ओके ग्रेट। सो डोंट, हाँ तू तो इचलकरंजी से है यार, तुझे मराठी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। नाही नाही येते ना मला. तो यस वी नीड टू, क्या कहा थे अपन, हाँ जो कुछ भी डिफिकल्ट लगता है ना उसको आपको इंटरेस्टिंग वर्ड से रिप्लेस करना है, एंड लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ओके चलो, तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। टुडे इज फ्राइडे, एंजॉय वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंजॉय टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। मंडे से बिल्कुल भी आपको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं दूंगी मैं। वी विल बी कंटिन्यूइंग सम एंड वी विल बी making our sessions more and more interesting, correct? Yes. तो see you then on Monday with the same link you can join. ये सेम लिंक रहेगी आपकी हमेशा भी यहाँ से आगे, so you can join with the same link. We will be meeting at same time 9 p.m. in the evening. Bye bye everyone. हॅलो Enjoy मॅम, the sprint. Yes, yes, go ahead. लेक्चर लवकर होऊ शकत नाहीत? काय फिक्सच वेळ असणार? ये अपना सेशन यही टाइम पे रहेगा, कोर पाइथन का जो सेशन रहेगा वो इसी टाइम पे रहेगा बेटा। ये बैच 9 पीएम की ही है, तो ये इसी टाइम पे रहेगी। ओके 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 आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं 10 के आगे एक्सटेंड नहीं करूंगी, ठीक है? ओके ओके नो इश्यू. यस श्योर। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।